Right. Most interesting projects that are going to be coming up कटिंग में ये साल में बट मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा जो एक्चुअली बताने की जरूरत है नहीं बालाजी टेलीफिल्म्स सबको पता है द काइंड ऑफ लेगेसी बालाजी टेलीफिल्म्स हैज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूवीज फॉलो टीवी शोज फॉलो कंटेंट ऑन ओटीटी एक्सेट्रा कोटे से थर्सडे के बारे में बात करूं कटिंग में आपको डेली मिलेंगे इंटरेस्टिंग डेली शोज फ्राइडेज एक्सक्लूसिवली रखा है हम लोगों ने फॉर कटिंग ओरिजिनल्स Saturdays जो है वो हम लोग ने रखा है for something very special and a pleasure to have you. I will request you to say a few words about what's in store today. मेरे ज़्यादातर वर्ड्स तुम भूल चुके हो मैं वही सोच रहा था मेरी स्क्रिप्ट क्या होगी क्योंकि सब तो तुमने बोल दिया. Okay, first of all happy LED बंद कराने बोलूं क्या पीछे? And we are here today to announce the slate of cutting. बिलाल LED बंद करने बोलूं क्या? Cutting है क्या? Cutting हमारा नया OTT LED बंद करने बोलूं क्या पीछे? आ रहा है. On both Google Play Store and Apple App Store, so you can go and download the app. आज से 3-4 महीने पहले हमने सोचा था कि कटिंग को लेके आना है एंड क्या ऐसा करें कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के होने के बावजूद go and download this app. तो हमने कहा कि हर एक OTT पे आज के टाइम में कुछ चीजें देखने को राइट कहीं पे बिंज शोज मिल रहे हैं कहीं पे टीवी प्लस टाइप के शोज मिल रहे हैं कोई एप्स है जहाँ माइक्रो ड्रामास भी हैं एंड कुछ एप्स है जहाँ पे टीवी के नॉन फिक्शन शोज भी आ रहे हैं तो हमने कहा यार हम क्या करें एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो एक सिंगल ऐप पे whatever you think about entertainment that should be available here and that's how cutting came into its origin. नाम cutting क्यों रखा बिकॉज हम लोग फेमस हैं काफ़ी लंबे शोज बनाने के लिए हमारी लेगेसी वैसी है लोगों ने हमेशा से हमारे टीवी शोज चाहे हैं तो इसलिए हमने कहा इस यू नो very nice 30 and 60 episodes family dramas that you can watch and together with your family enjoy the TV kind of shows with limited stories and not never ending stories. So that's Monday to Thursday for you. Friday will again be binge as हमें अच्छा लगता है 6-8 एपिसोड के बढ़िया क्राइम थ्रिलर्स मर्डर मिस्ट्रीज गुड कॉमेडीज यू नो शोज देखने का तो every Friday you will get a new show divided into 2 parts 4 episodes each on each Friday 8 episodes का binge आपको मिलेगा देखने को पिछले 3-6 महीने में हमने ये भी देखा कि माइक्रो ड्रामास हैव सडनली बिकम द न्यू टॉप ऑफ द टाउन पीपल थॉट इट्स अ बबल चाइना की कॉपी कर रहे हैं कब तक चलेगा बट आई थिंक ये कॉपी काफी अच्छी निकली चलते ही जा रहा है दौड़ते ही जा रहा है इट्स बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द एंटरटेनमेंट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नाउ so we in last 3 months have been producing micro dramas for all platforms and now are one of the biggest producers in this space as well. So हमारी learnings थी हमारे पास हमने कहा हमारी ऐप में माइक्रो ड्रामास भी होने चाहिए for the audience who can watch these 1 minute episodes on the go. So every Saturday you will get to see a new micro drama that we launch and Sunday will be non-fictions. So Sunday को celebrity neck chat shows जो आप देखते हैं वो आपको यहाँ पे रिलीज होंगे. So that's how Monday to Sunday it will be every day new show that will be given out for the audience. That's what cutting is for all of you. I would also like to invite the pillars and creator Alan. We also call him Prabhudeva back then. What do you get? To make this wonderful, really possible. Thank you. Great work. And I'll use 2-3 lines so let me tell you that. If there's one thing that drives India, it's entertainment, entertainment, entertainment. और हमारे ऐप कटिंग का यही प्रॉमिस है एंटरटेनमेंट का डोज हर रोज 7 दिन कड़क entertainment. So please download the app, watch it,
and tell others, tell the whole country that cutting is here for you all. Thank you. Hi everyone. Thanks to all of you for being here and helping us to reach here. And it was only possible with your support. So basically, the way we have designed this app is to ensure we can cater to both the audience. We have been known as a legacy for long form content, but here when you look at the vertical format, it's just swipe and go. So users can consume the content on the go. So this app has been built with the mindset of users first, where they can enjoy the content both the formats, be it on the go vertical format or the horizontal format. Thank you. Welcome everyone and thank you so much. First of all, I want to thank the entire creative team over here. They have made this show. Apurva, Shamaila, Shweta, Gyan, Apurva and Apurva. So thank you so much. Thank you to all the producers. Thomas. Also, special thanks to my commercial team, Amit and Amavan, for ensuring that producers come पैसों पे काम करें हमारे लिए. Thank you. And thank you to all the actors, producers. Thank you so much. When I was hired to work on the content over here for the cutting, the exciting part was यहाँ पे हर तरह का काम करना है. Just exactly like my CV, which is full of colorful. I've done non-fiction, I've done fiction, I've done web space, and I've been a journalist. So being a journalist, I obviously had a chat shows. So it was like, हाँ ये तो मैं कर लूँगी, क्योंकि this is what I have been doing it. And that's the fun part, usually getting to do daily soap, daily drama, the binge watch shows, the non-fiction, the micro-drama, the micro-dramas. So it's an exciting thing. So that's what the slate is also, which is extremely fresh, massy, in some spaces aspirational. And we've kept in mind all the genres so that people are getting everything. There's comedy, there's thriller, there's psychological thriller, there's crime, and there is daily soap, and there is aspirational content of mother-in-law, daughter-in-law, but say, completely spoken in a new language. So, we'll just want to take you through the interesting shows that we have, and we have the cast also over here. Thank you so much. Give a big round of applause इन सबके लिए please. मैं आप सबको request करूँगा सबसे पहले ग्रुप फोटो के लिए आप लोग इकट्ठा हो जाए यहाँ पे. Thank you so much. I'll request everybody to take their seats. I'll request Meghna ji to please remain on stage. Thank you so much. Already live. It's called Missing Priya, and the Priya is here, Abigail. In two lines, if I explain the show, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में रात को एक आदमी आया है अपनी बीवी की कंप्लेन लिखाने कि वो मिसिंग है, और वहीं पे एक दूसरा आदमी आया है अपनी होने वाली अगर बात हो रहा है तो हम कैसे नहीं बुलाए Abigail को on stage. Give a big round of applause. Abigail के लिए please everybody. Thank you so much. और मुझे लगता है आपने कैरेक्टर जो निभाया वो आपने अपना खुद का ही कैरेक्टर निभाया, क्योंकि स्कूल में भी आपका इतना ही डिमांड होगा लड़कों के बीच में, कॉलेज में भी होगा. It's pretty much like that, right? नहीं मैं और कॉलेज स्कूल में. Oh, unfortunate for the guys. Share your thoughts regarding the project. Actually, as it's already been spoken about, हमने काफी रिकॉर्ड टाइम में शो शुरू किया है. हमने नासिक जाकर शुरू किया है, बहुत ही बाहर की लोकेशंस में शुरू किया है. And I think we had a great time क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे क्या wanted to do this show. मैं खुद ही पढ़ के इतनी हैरान थी. So I really love playing. अगर बैकग्राउंड नहीं लाए फेस देख हमारा शो देखिए लाइव है, 2 एपिसोड्स आ रहा है. So उसके बाद हम बात करेंगे. Thank you so much. I wish you all the best. I'm sure जैसे कि लोगों को अब तक आपका काम पसंद आया, इसमें भी इतना ही पसंद आएगा. एक और बार जोर से ताली please everybody. Thank you so much. I'll request you to take your seat. And मैं आपको request करूँगा ma'am to take us through to the next one. So the next show is मुझे तो चाहिए. What मुझे तो चाहिए is, in two lines, it is basically a high voltage romantic thriller where you will see forbidden love, betrayal, and ambitions of our characters. So it is really amazing and. Thank you so much. मुझे तो चाहिए नाम है और I think हम सबको ये शो चाहिए. मैं मानसी स्कॉट और इकबाल खान को बुलाना चाहूँगा on stage पे. जोर से ताली इन दोनों के लिए please. They deserve every bit of it. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. What a pleasure to meet you again. Thank you. Hello sir. Thank you.
Pleasure. I'll request both of you to talk about the show, being a part of this fabulous, fabulous experience. Firstly, I'd like to say thank you to Shankar. He's directed it beautifully. Thomas, everyone. It's been a beautiful comeback for me of sorts into. It's a, what did my director tell me? It's an imperfect love story about imperfect people who then become perfect in their love. Something like that. But it's a great show. Love to do this with Iqbal. We have a few actors missing, and thank you so much, everyone at Cutting, all of you for having us. I've actually always wanted to work with Shankar Shivakumar. He's right there. I think he's an amazing director, he's an amazing writer. And I remember when his film went to Cannes, and I told him that whenever you make his next, I'll play a lamppost in whatever you make. And luckily he came to me with something very meaty. So I'm really happy and honored to be a part of your show. Shankar, thank you very much. Shankar, please. Come, Shankar. I'll request Shankar ji to please come over here. And Mr. Thomas as well, please. In दोनों के लिए भी please और सिद्धार्थ Thomas, this cannot happen without you. I'll request आप दोनों को please इधर आ जाइए on stage to deserve a part of this very, very special celebration. Thank you. Thank you, Thomas, sir, actually. And me and Thomas sir are partly both directors of the show. I wrote the show, and I had a great team, and I think I feel very happy that Guruji has been very kind to me, and I have these. In fact, when I was growing up, I was a huge fan of Iqbal sir. Right? But in the sense, when I was in college, he was a star. Like, I don't know, he was a star when I was in college. Right? So yeah, and I have this small thing to say. So, I want to become a model. Website. The first portfolio that I saw was a big Bari Khan. And I said, wow, somebody can look so good. No, and Just being nice to me, I never the. I don't know, like, it's phenomenal to work with him. Like, you write something, and then you actually see how an actor can take it to a different level. That happened. And then again, so Mansi, she's a very dear friend, very close friend. And I just called her and said, listen, Mansi, there's a show that I'm doing. And it's called Mujhko Chahiye. And I wanted to play the baddie in the show, right? Which is, I love it, I'm going to do it, just tell me the dates. So it's just been a great journey, and life has been very kind. And thank you so much, sir, for giving me the opportunity, and thank you, Nitin. Thank you so much. Yeah. And let's hope Cutting rocks, the show rocks. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. I'll request all of you to kindly take your seats, and once again a big round of applause for the fabulous, fabulous cast. I'll request. Tracking a Bagheera which leads to 13 dead bodies. So there is the whole mystery around who is killing, what is happening, and while the investigation is going on, there is a personal dynamic between the three main characters. One is SP, one is Aishwarya, who is playing into forensic expert. I believe Vijay ji is not here. Siddharth ji is here. So can I please request Siddharth Bhardwaj sir over here to kindly come up on stage? Thank you so much, sir. What a pleasure. विनय फोन आ रहा है तेरा. When you were going back, क्यों जा रहे हो वापस? I think for me life has come full circle because I started my journey on GCs with Thomas sir. He was my first director, and we did a non-fiction show together. And now I'm starting my journey as an actor on web. And again, it is Thomas sir. A special mention to Shankar sir because जब मैंने इनका काम देखा, I did not even have to read the script. I just told him मुझे आपके साथ काम करना है. And when we reached the location, I'm not going to romanticize it and say कि बहुत ही मतलब बढ़िया location थी या फिर I'm not going to sugarcoat it. It was a challenging schedule, but it didn't feel challenging because we literally were enjoying each and every minute that we were spending together as a team. So much so कि मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ, but when I was leaving the set, finally after my last shot, and I saw my entire crew be there waving goodbye to me, it was so heartfelt. So I'm so glad that I started my journey on web with you, Shankar sir and Thomas sir. Thank you so much. हमने एक भी सीन साथ में नहीं किया है,
But I have seen Sir work, I've seen his process, and it was truly a learning experience for me. And I really hope कि बस ऐसे मौके मुझे और मिले. So thank you so much, Cutting. Thank you so much, Thomas sir. Thank you so much, After. Each and everybody who was a part of this. Thank you so much. धन्यवाद थॉमस सर, शंकर सर और अभी को कुछ बता दिया इन्होंने। और बस मैं इतना कहूँगा कहानी बहुत नहीं है और ऐसी कहानी जो आप मतलब शायद अभी लोगों ने नहीं सुनी होगी। छोटा सा बताता हूँ मैं कि हम लोग अपने बच्चों से जो बातें करते हैं, बच्चों को बोलते हैं बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन हम बच्चों के सामने ही झूठ बोल देते हैं और फिर बच्चों के प्रोसेस में, बड़े होने के प्रोसेस में उनके उन बातों का क्या असर होता है, ये एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। प्लीज जरूर देखिए। थैंक यू बेटा। Thank you so much. आप दोनों को best wishes for the show and everything that you do moving forward. Congratulations. You know, in the space of family content, but lot of inspiring and inspiration. और मैं literally बोल सकता हूँ स्वाद आ गया इस चीज पे, if I can put it that way. Give it up, ladies and gentlemen. मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूँगा to say a few words. सासू माँ पहले ना। So it's a deep and thank you so much, Balaji. Thank you so much, Vedant and Vinayak sir, Amit sir, our director. So जैसे ही पहली बार I got the script and ये ऐसे करना है and सास is going to be a little different सास, not a regular one, not what we see on television or usually we think about saas. So that was actually a beautiful story which was narrated and I immediately was very excited and wanted to do it. And we had a great team. We loved each and every moment and we enjoyed thoroughly doing that, and especially making recipes in the kitchen and standing and having all of fun. We had अपर्णा मैम आप बन रहे हो वहाँ पे सास, लेकिन ग्लैमर अब कैरी कर रहे हो बहू वाला, ये तो मानना पड़ेगा। इनके लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। Thank you so much. I'll request चाहत, आप कुछ कहना चाहो रिगार्डिंग द शो? पहली बार तो मेरी सास बहुत सेक्सी, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है और ऐसी सास भगवान सबको दे जैसी मेरी शो में थी एंड जैसी अपर्णा जी रियल में। सो यस, सबसे पहले तो इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है और हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स किए हैं साथ में। एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं अमित सर, ये पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। उन्होंने सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, सबके कैरेक्टर पे ध्यान दिया। लाइक आप कोई भी कैरेक्टर देखोगे हमारे शो में, कोई भी किरदार, हर किरदार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है और सबका एक अपना ही अंदाज है, अपना ही सबका मज़ा है। सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, चाहे वो मेरी देवरानी हो, भाभी हो, कोई भी हो। सो यस, बहुत अच्छा रहा, हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और हमारी स्टोरी जैसा कि अपर्णा जी ने बताया थी, टिपिकल सास बहू वाली नहीं है। मेरी सास जो है वो बहुत सपोर्टिव है एंड सास और बहू साथ में मिलके कैसे आगे बढ़ते हैं ये हमारी कहानी है, ना कि बहू आगे बढ़ना चाहती है फिर सास टांग खींचती है, उसकी रोकती है, ऐसा मत करो, ये सब बिल्कुल नहीं है। कैसे बहू सास के सपोर्ट से अपने सपने पूरे करती है, ये इसकी कहानी है एंड ये बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है। आई थिंक जो भी हमारी कहानी देखेगा सास बहू और स्वाद, उसका नज़रिया चेंज होगा सास और बहू के रिश्ते के लिए। जैसा अभी तक देखते आए हैं कि सास बहुत नेगेटिव होती है, बहू को रुलाती रहती है, तो हमारी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत मजा आया साथ काम करके एंड आप जब देखेंगे तो पता चलेगा। और हमारी कहानी में सारे स्वाद हैं, सारे स्वाद है, मतलब तीखा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सब कुछ है, खट्टा मीठा भी है। सो थैंक यू सो मच गाइस। क्या बात है, बेस्ट विशेस आप दोनों को। And I think बालाजी टेलीफिल्म्स का तो पुराना रिश्ता है सास और बहू के साथ, so I'm sure they will be taking it forward incredibly well with Cutting. Thank you so much. मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा to kindly take your seats. बहुत बहुत शुक्रिया and I'll request you to carry forward to the next show. The next show is घर तेरा मेरा. It's a mad show. जैसे हम क्लासिक कॉमेडी की बात करेंगे, हेरा फेरी गोलमाल, this show has the potential to be cracking you up
It's an out and out. Chairman Shehzad Sheikh, Karishma Sawant, Adarsh Singh, thank you so much हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। मैं आप तीनों को रिक्वेस्ट करूंगा to कुछ say a few words regarding the show. इस शो में कॉमेडी है, रोमांस है, सस्पेंस है और फ्रेंडशिप है और ये शो शूट करते ही बहुत मजा आया है और जब ये शो आगे भी गया तो इन्हें भी बहुत मजा आ रहा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब रिलीज होगा सो दैट एवरीवन कैन विटनेस इट एंड थैंक्स टू काटे, थैंक्स टू बालाजी, इट्स अ ब्लेसिंग टू बी पार्ट ऑफ बालाजी। Also, big thanks to Deepak sir who gave us the freedom to perform with our creativity. Thank you so much. Thank you everyone. We do a lot of work, but doing this show was an absolute pleasure because it was a no holds bar. We were given complete freedom to do whatever we had, and so much work that we did. That we spent most of the day laughing and enjoying ourselves. So I'm sure the heart and love that we put into the show, that the directors have put into the show, and you're going to love it, especially on the cutting up. And thank you, Keith, thank you so much for having us here. And we hope you enjoyed that day. Hi everyone, I'm really honored to be on the stage with these lovely two actors. और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मैं कास्ट में देख रहा हूँ, उनको मैंने हमेशा टीवी पे देखा है. So my mama will be proud. और बहुत मस्ती की हमने इस शो को बनाते हुए. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी जब आप देखो तो पसंद आए, मजे आए. Thank you so much. मजा जरूर आने वाला है, pretty sure. Wish you guys all the best for the show. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much. I'll request आप तीनों को to kindly take your seats. We'll move to the next show. बड़ी टॉप शादी कब हो रही है या हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है. That's what the शादी भी really thing. यहाँ पे इस शो में शादी में एक डर बन गया है because there is one serial killer out on the streets. He's killing all the girls and he's killing them by making them cry. किसी को मंगलसूत्र पहना दिया, किसी को मांग में सिंदूर भर दिया. So here is a serial killer जिसको पकड़ने के लिए आया है एक सस्पेंडेड ACP जिसकी खुद की लाइफ में बहुत ही अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं. He's day drunk but he's extremely smart and only he's the one who can solve this case. So and he himself is navigating his personal loss. He's lost his wife. There's a teenager daughter who cannot even stand him. So while he has to fix his family life, but he's the only genius to catch this killer. That is what ACP Vikrant is, with lots of thrill inside. बात है, round of applause for them, please. क्या बात है? ACP Vikrant. जलवाया आपका भाई यार. Thank you guys. पहली बात तो मेरी मीडिया फैमिली है, so guys thank you for coming. और बालाजी परिवार रहा है मेरा. It's just kind of a homecoming of sorts for me. मेरे करियर के दो सबसे बड़े शोज, सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग शोज मुझे बालाजी फैमिली से मुझे मिले. और जब मुझे कहा गया ऐसे एक शो के लिए जो क्राइम थ्रिलर है, डार्क है, फूड अमेट स्पेस में है और सबसे हाईलाइट की आपकी बेटी भी है, तो मैंने कहा अरे वाह अच्छा है. सो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस करे, बहुत सारी चीज़ें मिली. The entire team, especially having a director and please hold on, and also for my writer, Gyan, please come on stage. ज्ञान जी आइए. प्लीज अपना ज्ञान का भंडार लेके आ जाइए यहाँ पे. क्या बात है, ज्ञान जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू. You also upload your brilliant. Thank you. Come guys. So big round of applause for her please as well. हमारी पूरी टीम आई थिंक जिसने आई एम श्योर बहुत मजा किया. बहुत ही एक कम टाइम में हमें मिला बहुत कुछ करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए. So it's not easy but a lot of fun. Thank you बालाजी कटिंग टीम. Thank you guys. मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने अपने 2 शोज जो किए हैं बालाजी के साथ, उसमें हम बड़े हुए पूरी कप चाय पीकर. सेकंड का जो मजा था उसका बहुत मजा आया था. So thank you so much. Now over to Vinay. Vinay, I would like to say that Vinay हम सब जानते हैं कि बहुत उम्दा कलाकार है. पहली बार मुझे मौका मिला है साथ काम करने का. बहुत ही पैशनेट और बहुत ही कूल इंसान है. मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि इट्स अ क्राइम थ्रिलर, तो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें. बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, सो तुम भी को ज़्यादा बोलना है. नमस्कार, मैं हूँ विनय आनंद और यहाँ पे
काफ़ी मुझे यूथ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ बताते हुए कि आज से 20 साल पहले मेरी आमदनी 18,000 रुपये आई थी, जो आप लोगों ने देखी होगी। काफ़ी जो जवान हैं वो 13, 14, 15 साल के थे। तो हम अभी भी देखते हैं सर जी, वो अच्छा मूवी। तो आफ्टर डूइंग लो में आ गया, दिल ने फिर याद किया, सौतेला, आमदनी 18,000 रुपये, सेवरल फिल्म्स इन हिंदी। आई वेंट इनटू भोजपुरी सिनेमा और वहाँ पे ईश्वर की कृपा से मैंने 70 फिल्में एज अ हीरो की। मेरे पास वक्त ही नहीं था हिंदी में आने का, क्योंकि यहाँ मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता था कि भैया हमके काम दे दी, मुझे काम दीजिए भैया, मैं गोविंदा का भांजा हूँ मुझे काम दे दो। तो ये सब मैं कर चुका था और इतनी फिल्में नहीं आती थी और रोल भी अच्छे नहीं थे। जब भोजपुरी में गया तो एक ईश्वर की कृपा हुई और 100 पिक्चरें, 200, 250 पिक्चर ऑफर हुई, तो जाके मैंने 60-70 किया और अच्छा सिनेमा किया और ईश्वर ने यहाँ भेजा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा बालाजी का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बालाजी के टीम के साथ काम कर रहा हूँ। ध्यान रंजन जो हैं हमारे, अपूर्वा जी जो हैं, इतना अच्छा सब्जेक्ट मुझे लाके दिया है। मेरा रोल इतना ज़बरदस्त है कि मैं मना नहीं करता। बहुत कई हिंदी फिल्मों में रोल ऑफर हुए थे, कई फिल्म में मैंने पैसे लेके वापस कर दिए कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, रोल अच्छा नहीं है, करूँगा तो रोल अच्छा होगा तो ही करूँगा, हीरो हूँ अच्छा ही रोल करूँगा। तो ईश्वर की कृपा है कि वो उसी तरह से मुझे ये काम मिला। बहुत खुश हूँ श्री आदरणीय जितेंद्र जी के आशीर्वाद से। एकता कपूर मैम जो है वो इतनी बड़ी प्रोड्यूसर बन गई कि आज विश्व में उनका नाम, हमारे हिंदुस्तान में 2 ही 3 ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिसमें से बालाजी का इतना बड़ा नाम है। और आज कटिंग ऐप जो आ गया है, मैं पूरे उत्तर भारत, बिहारी, हमारे भाई बहन जितने उत्तर भारतीय, बिहार, झारखंड और पूरे हिंदुस्तान से और पूरे विश्व से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इसी वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐप जो OTT बनने जा रहा है कटिंग, उसको अभी डाउनलोड करिए और अपने विनय आनंद को भाई देख लो, हिंदी में फिर लौटा है तो आशीर्वाद दे दो भाई। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद आ गया आपका बात सुन के। मैं ये कह सकता हूँ आप दोनों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बताने के लिए रिगार्डिंग द शो। जब ये शो के बारे में हमने लिखा, ये शो की स्क्रिप्ट हमारे दिमाग में जब आई, पेपर पर जब उतारी गई, तो सबसे पहले हमने विनय सर को ही अप्रोच किया और उनका रिएक्शन ये था, भाई तुम लोग ना मुझे मामा से पिटवाओगे, नेगेटिव कैरेक्टर करवा रहे हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हमने उनको बोला सर आप ये करके देखिए, आप ये पढ़िए, ये एक नया कैरेक्टर है, शायद आपने ऐसा कैरेक्टर पहले ना किया हो। आपके लिए आपकी अभी तक की जितनी भी फिल्म्स करी है, शायद उससे ये हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही लाइक द नरेशन एंड ही अग्री टू द कैरेक्टर। और उसके बाद व्हेन वी कम टू शरद सर भी थोड़ा सा हमें डर लग रहा था कि शरद सर को पता नहीं, क्योंकि अभी तक जो चॉकलेटी बॉय वाली जो इमेज थी सर की, तो ये थोड़ी सी ब्रेक हुई है उससे। तो आई एम श्योर आप सभी को पसंद आएगा ये नया ग्रे शेड सर का भी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं बस इतना कहना चाहूँगा एज बीइंग अ राइटर, हर शो, हर कहानी जो भी एक राइटर लिखता है लोगों तक पहुँचती है। हर कहानी अपने में विशेष है, अच्छी है। और अगर मैं इस कहानी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से हर थ्रिलर एक मज़ा दे जाती है और ये थ्रिलर अपने आप में एक अलग मज़ेदार एक्सपीरियंस है। जो भी बेहतरीन काम हुआ है एज एन एक्टर, मैं शायद सर की बात करूं या विनय सर की बात करूं, दोनों ने बखूबी काम किया है। मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता कहानी के बारे में, आप प्लीज शो देखिए एंड देन कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विशिंग a lot of luck for the entire team of ACB विक्रांत। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने स्थान पे काइंडली बैठ जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस incredible show. Request you. Non-fiction show,
and I won't speak much about it. I will call Mohammed. The show name is Honestly Why Not. Right. Yeah, you deserve every bit of it. Thank you. I'll request you to say a few words regarding the show. आप दोनों को करें. Acha. Put me under the bus. That is the permanent thing that Mohammed has decided from day one. But hello everyone. Honestly, this was a very last minute thing. I have come here because Mohammed said Aana hi padega and I didn't know I was going to see so many people. So this is quite scary for me. But I'm seeing a few faces like Iqbal, Sharat, of course. And I have to say it was great working on Honestly Why Not. Though I will say कि मोहम्मद थोड़ा खुशी हो गया था मुझसे क्वेश्चन करते करते ये शो ही ऐसा है जहाँ पे ये बहुत कुरेदने की कोशिश करता है बहुत गॉसिप निकालने की कोशिश करता है और क्योंकि मेरा किरदार ऐसा है और जिस वजह से मैं अपनी टीम में उसको लगा कि भाई मुझसे बेटर कौन है he did realize that I'm not that easy to crack. I'm quite a tough nut to crack. So, but the show is fun, light-based, relatable, funny है, interactive तो है ही, but आप लोगों को एक अलग साइड भी देखने मिलता है because we are so all of us are so free with Mohammed in the sense that he's very warm and welcoming. The set is very welcoming. The show was a great experience. बड़ा मजा आया खाने पीने को भी बहुत मिला साथ में जैसे कि आपने मेरे एपिसोड में देखा होगा. But it was good fun. But overall, Mohammed is the creative person, so he should take over now and say what and why did he choose us to come on the show. Good evening, everyone. So, Honestly Why Not was an idea for initially doing the podcast that Nitin's team held out, that helped in overall creative work, the team which we worked together, and then came up with 3 different segments. We don't wanted to make it ordinary, so we made entire show as extraordinary, where we keep 3 different segments. So we kept it very lightly, which we get to know because all the students are very closely working with us and in a friendly way. We don't make them ask some questions where they are discomfort. So we kept the segment names also in that way, Sip and Spill, then Tere Mere Beach Mein, which was very amazing. And we have shot for first 6 episodes now. Then season 2 is also coming up, but with a very different creator. Season 1 we have done with all ladies, and season 2 we have a different segment again for 6 to 8 episodes, which will be very much fun in a different way. That's it. And for more details you have to watch. All the male actors, I really want to see. तो मैंने बहुत कोशिश की हम लोगों के साथ, कुछ कामयाब रहा, कुछ फेल हुआ, but ठीक है. But I want to see the male second season. Males will not do the drama, either they'll give a straight answer. Females has more drama part in them. Excuse me, males drama नहीं करते, ये तुम कौन सी दुनिया में हो मुझे ये नहीं मालूम है. But ये तुम फालतू में हम लोगों को बदनाम मत किया करो. In fact, we spill, you know, and they gossip. That's the thing. That's what I feel. In season 2, we'll get to know who did more better. And of course, I feel males will do more better and they'll give us more controversial parts. So that's all about Honestly Why Not. So you all need to watch all the 6 episodes. It's one of the best podcasts we have done till now. Because we can't call it as a podcast. It's one of the best shows which you will see all the different team members we have done together. Thank you. Thank you so much. मैं आप दोनों को best wishes कहना चाहूँगा for the show and everything that you do moving forward. मैं stage में वापस बुलाना चाहूँगा मेघना जी and नितिन जी को, and I request both of you to remain on stage, please. Yeah. And मैं हमारे जितने भी cast है of all the shows, all the producers, can I please request all of you to join on stage for a very very special group photograph. ये collective all shows का group photo होने वाला है, so I request all the producers, all the actors to join us on stage for a special group photograph. मैं सबको बुलाना चाहूँगा over here. चाहत, Abigail, everybody, all of you, if you can come on stage for a special group photograph, please. Screen off कर दीजिए, please. Aishwarya, yes, everybody over here on stage, thank you. The entire cast
all the producers, actors, everybody, मैं आप सबको request करूँगा join कीजिए यहाँ पे on stage for a special group photograph. This is a memorable moment. Meghna ji, Nitin ji, everybody over here on stage. This is a momentary occasion. 2026 में cutting मचाने वाला है धूम, and we're all set to celebrate this very very special moment. बहुत बहुत शुक्रिया. हर रोज से चलती नहीं सुबह से लेके लेट नाइट हर मूड के लिए स्क्रीन पे बाइट everybody solo. छोटा सा We shouldn't miss anyone. स्ट्रॉन्ग हो फ्लेवर शॉर्ट हो शॉर्ट एक सिप में रिफ्रेश फुल ऑन ब्लड मंडे से जब शुरुआत हो टीवी वाला ट्रैफिक स्वाद हो दिल का ड्रामा डेली फ्लो ये फोटो के बाद मैं सिर्फ all actors को बोलूँगा to remain on stage for a group photo for the media, please. All the actors on stage, please, for a group photo for the media. Drama fast, Sunday night, real gossip, non-fiction fire, raw or clean. Har din fresh, ink taste, strong or best. Yes. मंडे से जब शुरुआत हो टीवी वाला ट्रैफिक स्वाद हो दिल का ड्रामा डेली फ्लो हर रोज कुछ नया चलो एंटरटेनमेंट का डोज क्या हर रोज मिलता हर रोज क्लोज एंटरटेनमेंट का डोज आईफोन हो या टीवी फुल ऑन डोज एंटरटेनमेंट का डोज एंटरटेनमेंट जब चाहिए नाम की आई हो एंटरटेनमेंट का डोज के साथ नो मिस एंटरटेनमेंट का Thank you so much. That's it from Special Coming Slate Launch 2026. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोस्तों from the media to come and be over here. We'll be now having the media bites and the interviews. Center. Once again, a big shout out to this very very special venue, Look the Air. Give it up for Look the Air. क्या जाओ हाँ देख किशन का पूरा सीधा स्टेज पे खड़ा करो किशन आप बताइए अपनी तरफ से आपके शो के बारे में और ऑडियंस से क्या रिस्पॉन्स रखती हैं आप इसका सटल हाँ वेरी सटल ओके एक्चुअली मेरे शो का नाम है मिसिंग प्रिया जो आई थिंक काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है शो किस बारे में है इट इज़ अबाउट एक लड़की होती है जो गायब हो जाती है एंड दो अलग लोग आ जाते हैं और क्लेम करते हैं कि ये मेरी जानकार है दूसरा बोलते नहीं ये मेरी जानकार है एंड इवेंचुअली कैसे स्टोरी लीड ऑन करती है बताने के लिए कि एक्चुअली लड़की कौन होती है और क्या करती है
एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई थिंक आफ्टर अ वाइल मैंने एक शो किया है। मैं वेट कर रही थी कि कोई मज़ेदार स्क्रिप्ट आए तो करूँ, एंड आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि जब मैंने पढ़ा भी था आई रिमेंबर बीइंग लाइक वाओ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो थ्रिलर है, काफ़ी ट्विस्ट है, काफ़ी टर्न्स है, एंड ऑल इन ऑल हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत कोशिश की है शो में लाइव लोकेशंस में शूट करना मुश्किल था, बट आउटकम बहुत बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप शो देखिए और हमें प्यार दीजिए। Sorry? I have started with बालाजी। मैं 15 साल की थी जब मैंने बालाजी के साथ अपना फर्स्ट लीड शो किया था। तो वेरी ऑनेस्टली बालाजी के साथ काम करना फील्स लाइक कमिंग होम फॉर मी। मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि मैं कोई बाहर वाले प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ। एंड एवरीवन फ्रॉम द चैनल टू द प्रोडक्शन बहुत अच्छे थे। आई थिंक सबको बहुत ही डेस्परेटली एक अच्छा शो बनाना था, एंड आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड, द राइट इंटेंशन। सो या फील्स ग्रेट। आई होप एंड प्रे कि बालाजी के साथ मेरा ये रिश्ता हमेशा रहे। एक चेंजेस किस चीज़ में? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। आई थिंक जब मैंने टीवी स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ टीवी होता था, एंड तब मुझे मैंने एक लव स्टोरी की थी बालाजी के साथ बहुत पहले, एंड आई थिंक वो मेरा फर्स्ट शो था। तब बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत इनामर्ड थी मैं हर चीज़ के साथ, एंड आई थिंक मैं अब भी हर शो के साथ वैसे ही इनामर्ड होती हूँ। आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट तो चेंज नहीं हुई है, बट येस डेफिनेटली आई थिंक कंटेंट काफ़ी चेंज हुआ है, प्लेटफॉर्म्स अलग आ गए हैं। तो अभी आई थिंक बहुत पहले पहले टीवी में हम कुछ ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, एंड आई थिंक वेब हैज़ ओपनड अप दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। तो आई थिंक अब बहुत फ्रीली कंटेंट बन रहा है और बहुत ज़्यादा लिबर्टीज लेके कंटेंट बन रहा है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। बहुत पसंद आने वाला कुछ अलग लग रहा है। कुछ पहले से कुछ नया आप कर रहे हैं, कुछ अगर आप बताना चाहें। तो आई थिंक दिस ईयर हैज़ बिन हर साल की शुरुआत एक अच्छे शो के साथ होनी चाहिए। सो दिस इज़ दैट शो। इट्स लाइट हार्टेड, इट्स कॉमेडी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बालाजी एंड कटिंग इज़ ऑल्सो बैकिंग दिस शो अप, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी खुशियाँ एंड समथिंग लाइट हार्टेड एंड फन मिलेगा। हम जब बना रहे थे हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ना टीआरपी आने वाला है, आपकी तो हाईएस्ट टीआरपी शोज होते हैं हर जगह। दंगल के शो स्टारडस्ट में आ जाते हैं हर जगह पर। यहाँ पर तो क्या कहना चाहिए, कितना हंगामा होने वाला है शो में? मैं जब भी कुछ करता हूँ तो पूरी दिल जान लगा के करता हूँ। सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि ये भी आपके दिल को और उस तरह आपको टच करे। बट ये शो का बेसिक था कि नथिंग टू सीरियस दिस टाइम, समथिंग फन, समथिंग लाइट हार्टेड एंड हैप्पी। रोमांस कितना होने वाला है आपकी दोनों शो के साथ? वहाँ केओस ज़्यादा है, रोमांस थोड़ा कम मिलेगा ये शो में, बट इट्स अ फन शो। प्रॉपर्टी को लेकर शो है जी। तो कितना वो होने वाला है, मतलब आपका प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली का उसका कोई कब्जा कर ले, जैसा होता है हाँ। दिल्ली में भी कई लोग कर लेते हैं, तो क्या कहना जाएगा? वेल, जब कोई गरीब हो जाता है उसके पास कुछ नहीं बचा होता तो बाप की प्रॉपर्टी के पास जाता है। तो ये वाला कैरेक्टर भी बिल्कुल बाप की प्रॉपर्टी पे जाने वाला है, एंड जस्ट व्हेन ही इज अबाउट टू मेक हिज बिग मनी, और उसी वक्त के ऊपर एक ब्यूटीफुल लेडी आके उसके सारे प्लान को चौपट कर। शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। पहली बार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बोला कि खुला हाथ है, जो होता है होने दो, जो करना है तुम्हें करो, एंड इन द प्रोसेस वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मैजिक। जैसे एक शॉट है जो आई थिंक 4 मिनट का वन शॉट है, which is pure comedy and improv, which was fun. How was, sorry? Oh, the experience was amazing. Vedant Films was lovely. Cutting and the team of Balaji was also so good. And it's always a pleasure to work with thoroughbred professionals. नए साल की क्या प्लानिंग है, क्या नए साल की प्लानिंग ये है कि हम ये साल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज में हो सके, बट दिस इज ऑलवेज द हार्ट एंड क्रू। तो जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, यू विल सी मी ऑन फ्लोर। Thank you so much for having me, guys. It's always a pleasure. Thank you. God bless you guys. See you. So good to see you and many congratulations. Thank you so much. हमें काफी अच्छा लगा आपका पिक्चर, आपका शो काफी अच्छा, हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप अपनी तरफ से बताइए कि क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके शो में और आप किस इंतजार में हैं? मेरे शो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल डेली सोप के फैंस भी ये चाहते हैं कि जो लीड एक्ट्रेस हो वो रियलिस्टिक हो, ऐसी मतलब इमेजिनेशन वाली नहीं हो कि हाँ बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है, सब कुछ सहती है, दूसरों से पहले खुद से पहले दूसरों का सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर
और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ये ऐसा जॉनर है जो मैं पहली बार कर रही हूँ, दैट इज़ कॉमेडी, एंड कॉमेडी के साथ देयर इज़ रोमांस, रोमांस के साथ देयर इज़ सस्पेंस, एंड देयर इज़ फ्रेंडशिप ऑल्सो। तो ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा है। कॉमेडी सस्पेंस रोमांस सब एक साथ देखने को मिल रहा है, पर पर्सनली एज अ पर्सन आपका पर्सनल जॉनर कौन सा है? फेवरेट समथिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग, जैसे आलिया भट्ट इन जिगरा, समथिंग लाइक वुमेन सेंट्रिक, या फिर यामी गौतम इन हक, समथिंग लाइक दैट। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट एज एन एक्टर, जिसमें द फीमेल इज द प्रोटैगनिस्ट, लाइक उस पे ही पूरा है सब कुछ। बालाजी के साथ जुड़ने का एक्सपीरियंस कैसा था और कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था आपके लिए? ऑफ कोर्स लाइक बालाजी के साथ जुड़ना इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी शुरुआत वेब सीरीज़ में हो रही है, कटिंग से हो रही है एंड बालाजी से हो रही है। मैम शो के अंदर दिखाए गए प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए, आपका कैरेक्टर किस तरह से होने वाला है? और सर भी काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, काफ़ी हिट शो किया, तो उनके साथ काम करके कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था सबके साथ एक्चुअली। आदर्श प्लीज कम ना, आपको दिस ही इज, मतलब ऑनेस्टली कहूँ तो इनके साथ शुड आई लाइक स्टैंड अप और समथिंग, इनके साथ मुझे इनकी वजह से मैं सीन के बीच में इतना हंसी हूँ। तो द एक्सपीरियंस वॉज बेसिकली कि हम शूट करते करते ही हंस रहे थे, तो शूट करते करते हमें इतना मज़ा आया विद शहजाद, विद आदर्श। तो आई जस्ट कैन इमेजिन कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट जब बाहर आएगा तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। आप बताना चाहिए कैसा रहा मैम के साथ एक्सपीरियंस, अगर आप बताना चाहें। यार हमें लगता है कि स्क्रिप्ट ना लिखी भी बहुत अच्छी हुई है, तो उसको हमने बहुत इम्प्रोवाइज़ भी किया, हमको बहुत फ्रीडम मिला डायरेक्टर सर से, प्रोड्यूसर सर से। और क्या होता है ना, जैसे करिश्मा एंड शहजाद, दे बोथ आर वेरी लाइक बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। एंड दे क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ना बहुत ईजी हो गया मेरे लिए भी, जो मैं काम करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो जो एनवायरनमेंट होता है, मुझे लगता है उसी से चीज़ें निकलती है, सीन निकलता है। और बाकी तो करिश्मा ने बताया है कि हमें कितना मज़ा आया शूट करके। टेलीविजन में काफी मतलब ऐसा रहता है ना कि रोज शूट करना है, हाँ। फटाफट काम करना है। हाँ। यहाँ पर आपको कितने दिन पहले मिली, वर्कशॉप कितना किया आप लोगों ने, कुछ अगर आप बताएं। यहाँ पे हमें टाइम बहुत था, बट फिर भी लकीली हमारा सब एक एक टेक में हो रहा था। मतलब जितने डेज दिए थे उसके आधे में हमने कंप्लीट कर दिया, तो प्रोडक्शन वाज वेरी हैप्पी विद अस, क्योंकि हमें इतना मजा आया ना कि रीटेक हो ही नहीं रहा था। और शहजाद आ जाओ ना तुम। और हाँ, मैं वही बोल रहा था, इतने बड़े-बड़े और even though- साथ में काम कर रहे हैं, नहीं इतने बड़े कलाकार हैं। नहीं, बैठो मैं यहीं रिश्ता की भी हीरोइन है ऑब्वियसली। हाँ, सेम कहीं ना ये कहीं। रिश्ता ये रिश्ता। हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ कोर्स, बट यस यस। बनाओ घर दे रहा हाँ, बहुत हो गया। बट बहुत मजा। चाइनीज। तो सर क्या कहना चाहिए, मैम के साथ कैसा रहा कुछ अगर आप कॉमेडी के अंदर हमेशा बहुत मुश्किल होता है कि एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी को एक्टर्स के साथ ट्यूनिंग और फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट मुझे लगता है हम तीनों के साथ तो फ्लो तो मतलब डे वन से ही आधे एक घंटे के अंदर जो पिकअप हुआ, आखिरी दिन के एंड पर ही मतलब ऐसे समझ में नहीं आ मैंने रहा वही था। बताया कि जितने डेज हमें शूटिंग के दिए थे, मतलब था हमको बहुत टाइम करूँ जितना भी, बट हमने कर दिया, अब आदि अब क्या करें, हो गया हमारा वैसा। तो जैसे कि आपने कहा कि हाँ डेली सोप में रोज करना पड़ता है ये वो, बट आई हैव नो प्रॉब्लम, आई लव एक्टिंग। मैं 12-12, 14-14 घंटे भी काम कर सकती हूँ, तो वैसा कुछ नहीं है, जितना भी फास्ट करा। आप कुछ बताना चाहिए, क्या कुछ सीखा आपने सेट से 2 रोज तक? जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे पहुंचा था तो मुझे मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। बट मुझे ये पता था कि ये दोनों जो बंदे हैं ये काम करके आ रहे हैं, बहुत काम किया है। तो मुझे पता नहीं था कि कैसा मतलब कैसा वो होने वाला है। ऑल्दो हम रीडिंग पे और उसमें साथ में थे, तो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि अच्छी वाइब। लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि सीन बहुत इजीली फ्लो हो रहा है, हम लोग अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं और सीन दे रहे हैं, शॉट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, और मस्ती भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शूट कर रहे हैं, बाकी हम बहुत मस्ती भी की, बहुत इनसाइड जोक्स भी हैं। तो तो मुझे लगता है कि इस तरह के को एक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको वो एनवायरनमेंट, वो फ्रीडम देते हैं, जिससे कि आप भी खिल के आते हैं और सामने वाला भी। ओके, आखिर में तो फैन से क्या कहना चाहिए आप? तो अपने शो कब रिलीज होगा, कुछ अगर आप बता सके? ये कटिंग के स्केड्यूल पे रिलीज होने वाला है, पर हम तीनों की तरफ से आप लोग थोड़ा सबको इंतजार बहुत और सारा करना प्यार, पड़ेगा। बहुत सारी मोहब्बत एंड यस होप टू सी द थ्री ऑफ अस किल इट सून। हम तो चाहते हैं कि आज ही आ जाए, हाँ। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, तो बहुत होपफुली सबर करा दिया मैंने अपने फैंस से।
हमेशा ये बोलती रहूँ। Thank you. Waiting for your हेलो, जातना अपर्णा मैम कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ में आए हैं, क्या कहना चाहिए? बोलिए मैम, बोलो। नहीं, सास बहू में शुरुआत करेंगी पहले मेरी प्यारी अपर्णा जी। तो ये जो है, ये शो जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। जो सास बहू की कहानी है बहुत अलग तरीके से कही गई है, दो इंसान की कहानी है। और मेरे ख्याल से ये शो के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ह्यूमन इमोशंस, मतलब भावनाओं को इंसान की कैसी है उसे समझाने का प्रयास किया गया है। और मेरे ख्याल से लोगों की मानसिकता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यस, चाहत जी सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। शो को बहुत प्यार मिल रहा है, यूट्यूब पर आ चुका है आपका ये शो ऑलरेडी। क्या कहना चाहेंगे, सास को आप खाना बनाने के लिए कंपटीशन तक लेके चले जाती है, सास गुस्सा हो जाती है, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी तो 3 लाख रुपए के लोन ले लेते हैं, क्या क्या करते हैं आप लोग? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हुआ है, पर रिश्ता बरकरार है हमारा प्यारा सा। और आपने YouTube पे देखा अब तक बालाजी टेलीफिल्म्स के YouTube चैनल पर सास बहू स्वाद पर, अब आप कटिंग ऐप पर भी देख सकते हैं। सो यस, प्यार दीजिए, जैसा प्यार आपने अब तक बनाए रखा है हमेशा ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। क्या कहना चाहिए बहू के बारे में? आप बहू ने काफी हंगामा किया, खाना बनाने के लिए कहा बहू ने, थोड़ी सी आप नाराज हुई जब बहू ने बताया नहीं आपको? क्या होता है, ये सारे एपिसोड देख के आए हैं, ये सारे एपिसोड देख के आए हैं। वेरी मतलब गुड। एक एपिसोड की बहुत बढ़िया तरीके से बातें निकाल के आ रहे हैं कि वो नाराज हो जाती है। तो मैंने कहा ना, ये शो के अंदर आपको ना भावनाएं देखने को मिलेगी, ह्यूमन इमोशंस के साथ खेला गया है। स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छे से काम हुआ है कि छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भगवान है ऐसा है कि सब इंसान है और इंसानों से गलतियाँ होती है। अगर कोई पैसे इधर उधर हुए या बिजनेस के लिए कुछ किया या कुछ भी हुआ, छोटी छोटी गलतियाँ बच्चों से होती हैं, बड़ों से भी होती हैं। तो सब गलतियाँ होती हैं, फिर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, चीज़ों को खींचते नहीं हैं। ये है इस शो की खूबसूरती। चाहत जी, शो से ये भी पता चला है कि घर बैठे आप कंटेंट बनाइए, यूट्यूब चैनल चालू कीजिए और घर बैठे आप अपना खाना बना करके आप कीजिए। क्या कहना चाहिए आपके? बिल्कुल, आजकल तो सबका आई थिंक ये पार्ट टाइम जॉब हो गया है कि ब्लॉग्स बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, वीडियोस बनाना है, रील्स बनाना। इसके बिना मुझे लगता है किसी का खाना नहीं पचता, देखे बिना भी नहीं पचता, बनाए बिना भी नहीं पचता मोस्टली लोगों का। सो यस, बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है मैंने कि अगर आपके पास कोई काम ना हो तो आप व्लॉग्स बना सकते हैं। सो यूट्यूब पे व्लॉग बनाइए, अपना टैलेंट दिखाइए। अगर आपको, और पहले सोशल मीडिया नहीं था तो जो भी एक्टर्स होते थे या जो भी कलाकार होते थे, किसी भी चीज़ का टैलेंट है किसी के अंदर, चाहे वो सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो और एनीथिंग, कोई भी आपका टैलेंट है, आपको पहले हमेशा मंच की ज़रूरत पड़ती थी। पर अब सबके घर में ही मंच है सोशल मीडिया, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, सब अपना टैलेंट वीडियोस बना के और व्लॉग्स बना के सब दिखा सकते हैं। तो अब कितना इजी हो गया है। सो आजकल ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि अब हम घर से ही सारी चीज़ें हम दुनिया को और लोगों को दिखा सकते हैं। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी दिखाई दी थी अभिषेक सर के साथ। कुछ कहना चाहिए, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? सुपर एक्सपीरियंस, मैम के साथ तो काम करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी प्यारी थी, सब लोग बहुत अच्छे थे। मतलब इतनी एप्ट, इतनी सुपर्ब कास्टिंग थी हमारे शो की। कोई भी हो, चाहे वो किरदार, कोई भी किरदार हो, सब लोग बहुत अपने आप में सब परफेक्ट एंड फिट थे कैरेक्टर के हिसाब से। सो हमारी पूरी एंटायर कास्ट बहुत प्यारी थी। सो इसमें जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छे लोग, बालाजी टेलीफिल्म्स को थैंक यू सो मच कि इतनी मतलब एक प्यारा सा शो का कॉन्सेप्ट उन्होंने वो किया और विनायक जी ने एज ए प्रोड्यूसर उसको तैयार कराया। और साथ में हमारे जो डायरेक्टर हैं अमित दामले, उन्होंने बहुत फैंटास्टिक काम किया है, जिसके ज़रिए जो है वो शो इस तरह से उतर आया। शो में लोगों का काफ़ी अच्छा लोग जो देखने को मिल रहा है। आपने भी कहा कि मेरी सासू माँ काफ़ी अच्छी है, पर मैनिफेस्ट चीज़ें करते हैं लोग काफ़ी चीज़ें, तो आपने कभी ऐसा मैनिफेस्ट किया है कि आपको आपके पर्सनल लाइफ में कैसी सासू माँ चाहिए और कैसी क्वालिटी आप अपने सासू माँ में देखती हैं? सासू माँ अच्छी होनी चाहिए, जैसी सास बहू स्वाद में आप सब लोगों ने देखी है, इनके जैसी वैसी होनी चाहिए, प्यारी, सपोर्टिव,
थोड़ी बहुत डांट फटकार लगाने वाली, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है ना। सो यस, यही हस्बैंड कैसा होना चाहिए यार? हस्बैंड जैसा सबको हस्बैंड चाहिए वैसा ही मुझे चाहिए, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड रिस्पेक्ट करे, 3-4 चीज़ें होंगी बहुत है, बाकी फिर मैं ठोक पीट के सही कर दूंगी उसको। की तैयारी कैसी चल रही है आपकी, कुछ अगर आप बताना चाहें। आपको क्या लगता है मैं कर रही हूँ शो? हाँ, लगता है आपको कर रही हूँ मैं शो? कर रही होगे। हाँ, क्या बोलूँ अब मैं? कैसी चल रही तैयारी है बताइए। बोला जाता है ड्रामा में मेंटली काफी स्ट्रांग होना चाहिए कंटेस्टेंट, मेंटली फिजिकली, इस पे क्या टेक है? हाँ, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बट एक्चुअली अभी मैं अनाउंस मैं हो चुका है प्लीज अवॉइड द क्वेश्चन। हम बात करेंगे जल्दी ही इस बारे में। थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाहती हूँ। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखना सब। बाकी आप लोग समझ ही गए हो, है ना? है कि नहीं? चलेगा ना? चलेगा ना? चैनल डिजाइनर, अरे कपड़ों का देखो ना, खुद ही कर लूंगी सब। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपना, है ना? और सब हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस बार मुझे रोना नहीं है। हंगामा करना। Alan, so good to see you. Thank you. Many congratulations. Thank you so जिस much. तरीके का आपका शो है, टीजर है, हम लोगों को बहुत पसंद आया। जिस तरीके से ऑडियंस प्यार करती है, आप बताइए ऑडियंस के आगे क्या रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करती हैं और क्या इंटरेस्टिंग और आगे आने वाला है? ऑडियंस से डेफिनेटली प्यार ही एक्सपेक्ट करती हूँ। इतने सालों से प्यार दिया है तो वही कंटिन्यूटी में देती रहिए। बट द शो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, जाफना हिल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। इट्स अ मर्डर मिस्ट्री एंड मैंने आज तक कोई थ्रिलर नहीं किया था, सो दिस वाज फन टू डू। ऑल्सो द फैक्ट कि हम लोगों ने बॉम्बे में शूट ना करके इसे देहरादून में शूट किया, ऑथेंटिक लोकेशंस पे शूट किया। जो हमारे डायरेक्टर थे, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, द टीम वाज जस्ट राइट। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू कटिंग फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू वॉच कटिंग, सम गुड कंटेंट। ऑनलाइन शो आ रहा है तो हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया। काफी हंगामा मचा रहा है। तो क्या कहना चाहिए, शो काफी हंगामा मचा सकता है, कब तक आने वाला है ये शो? देखिए, हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि हंगामा मचाएगा। उसी नियत के साथ हमने शूट किया था और फ्रॉम व्हाट आई नो ये फरवरी के फर्स्ट हाफ में ये रिलीज़ होगा। अब मैंने भी अभी तक रशेज़ नहीं देखे हैं, डबिंग के लिए 1-2 दिन में बुलाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हाल है। बट जिस तरीके का रिस्पांस मुझे क्रिएटिव टीम से मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स से मिल रहा है, डायरेक्टर्स से मिल रहा है, कटिंग के लोगों के साथ मिल रहा है, आई एम रियली होपफुल दैट दिस शो इज समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग यूनिक। ओटीटी का जमाना आ चुका है तो आप कैसे देख रहे हैं? ओटीटी का ज़माना बहुत पहले आ गया था, मैं थोड़ा लेट घुसी हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। नहीं, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। यूजुअली हम एक कैरेक्टर को 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्ले करते हैं। इस कैरेक्टर को मैंने कुछ 15 से 16 दिन प्ले किया ऑन फ्लोर। उससे पहले स्क्रिप्टिंग और उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, तो वो मौका मिला इस टाइप के फॉर्मेट में काम करने का। सो इट वाज वेरी क्विक कि अभी शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया। सो वो अभी भी उसका हैंगओवर है मुझे, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। One last question, 300 songs in Telangana. I'm sorry? 300 songs. हाँ, Can 500. you, 500. आप क्या कहना चाहिए? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। कल हम लोगों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया था कैंडल जला के एंड इट ब्रेक्स माय हार्ट, दैट्स ऑल दैट आई कैन से। आपको लगता है इंसानियत खत्म हो चुकी है? लगता नहीं, मुझे पता है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और जब लोग बोलते हैं कि कलयुग है तो जेन्युइनली लगता है कि कलयुग ही है। Thank you, ma'am. Thank you. Where is the media? Everybody is left. आज मुझे लग रहा है मैं नेता बन गया हूँ। नहीं, आप अभिनेता ही बहुत अच्छे हैं। यस, थैंक यू। आप तो हंगामा मचा रहे यूपी बिहार के दिलों के राजा है। सर क्या कहना चाहिए, हिंदी में वापसी की आपने, घर वापसी हुई चुकी है मतलब हिंदी के साथ, क्या कहना चाहिए?
देखिए, मैं कहीं गया नहीं था, मैं यहीं था और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दिल ने फरियाद किया, सौतेला, लो में आ गया, इतनी सारी फिल्में करके भोजपुरी में चला गया और वहाँ इतना व्यस्त हो गया और फिर अभी इतने साल बाद वापस से मुझे मौका मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय एकता कपूर जी का कि उन्होंने कटिंग OTT ऐप लॉन्च किया और उसमें मुझे किरदार करने का मौका दिया। आई एम रियली थैंक्सफुल। किस तरह का कैरेक्टर है सर आपके शो का, कुछ अगर आप बताना चाहें? बहुत खतरनाक मेरा कैरेक्टर है। मेरा रोल ऐसा है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि विनय आनंद का इतना अच्छा रोल हो सकता है। और मैं सच बताता हूँ कि 2 चीज़ों की वजह से मैं खुश हुआ कि एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, थैंक्स टू ज्ञान रंजन जो मेरे राइटर हैं, अपूर्वा जी जो साथ में हैं। इतना प्यारा सब्जेक्ट है ACP विक्रांत और एक खुशी थी कि एकता जी के छत्र छाया में ये चीज़ बन रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शूट का सर कैसा एक्सपीरियंस था, क्या आपने डिफरेंस देखा कुछ कई सालों के बाद आप शूट कर रहे हिंदी का? शूट का यही था कि काम बहुत कराते हैं ये लोग, मेहनत 30 देते हैं और नहीं बहुत अच्छे से हमारा शूट हुआ और क्योंकि चाहते थे कि जल्दी लॉन्च हो रहा था तो थोड़ा जल्दी करना पड़ा, तो बहुत आनंद आया। एंड गाइस, डाउनलोड द कटिंग ऐप और आपन विनय आनंद के प्यार दी, भोजपुरिया समाज के ही विनय आनंद आ गई बा वापस हिंदी में और मेरे हिंदी के दर्शक मैं आ गया हूँ। प्लीज़ 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 ACP विक्रांत। आपकी भाषा की बात करें, बहुत अच्छी भाषा है, साफ सुथरी भाषा, हिंदी भाषा। आजकल हम देखते हिंदी में लोग बोलते कम है, अंग्रेजी में जाते हैं। यार मैं हिंदुस्तानी हूँ यार, हिंदी फिल्मों में काम करना है, भोजपुरी में काम करना है, कहाँ इंग्लिश। अभी देखो इंग्लिश वाली जितनी ऑडियंस है हमारी, वो इतना सब ने इंग्लिश बोल दिया है, तो भाई हमारे जो बाकी के हैं उनको भी तो संभालना है ना हिंदी भाषी, तो विनय आनंद है ना, क्या दिक्कत है। आने वाले दिनों में हम आपको क्या बिग बॉस या कोई रियलिटी शो में करना पसंद करेंगे आप? हाँ, ये लोग अगर सोचे कि भाई विनय आनंद इस योग्य है 70 पिक्चर करने के बाद अगर विनय आनंद को लेना चाहिए तो भाई मैं तो हाजिर हूँ। मतलब आप करेंगे? ready? वाई नॉट, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू। अरे किशन भी आ गया भाई, बहुत खतरनाक किशन है। पता नहीं भाई, तेरे को ही खबर आती, किसी को नहीं आती। बिग बॉस में जा रहा हूँ, जब जगह नहीं जा रहा हूँ। हाँ बोले। जी सर, बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ आपको काफी काम करते देखा गया और काफी सक्सेसफुल रहा है वो काम, वापस आप जुड़ रहे हैं जी। और ये इसका शो काफी पसंद आ रहा है लोगों को, रिस्पॉन्स। आप बताइए कैसे रिस्पॉन्स आप उम्मीद करते हैं ऑडियंस से और इसमें क्या इंटरेस्टिंग आपकी तरफ से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आई थिंक बालाजी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे घर है, फैमिली है। एकता मैम जिनकी वजह से मुझे अपनी करियर के सबसे 2 बड़े शोज़ मिले, कसम तेरे प्यार की और नागिन। उसके बाद मुझे मौका मिला कटिंग का ये बहुत अमेजिंग शो ACP विक्रांत, जो बहुत लोग कह रहे थे कि मैंने कभी क्राइम थ्रिलर नहीं किया, हमेशा रोमांटिक रोल में दिखाऊं। बट ये कोशिश है कि ये क्राइम थ्रिलर है, डार्क है और मर्डर मिस्ट्री है। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन शो का नाम है ACP विक्रांत, जो मैं विक्रांत प्ले कर रहा हूँ। अब कौन खूनी है, कैसे खून कर रहा है, किसको मार रहा है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। 8 एपिसोड्स हैं, आप देखें 25 से 27 मिनट के हैं, फटाफट उसको बिंज वॉच कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को। जी आप जब भी प्रोजेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, रुक के करते हैं, आप लोग वही करते हैं। अब मुझे पता है मैं रुक के करता हूँ यार। क्या चीजें लगी आपको खास जो कि प्रोजेक्ट को अपने हाथ मुझे देखिए, मुझे सबसे खास ये लगा कि जो किरदार था मेरा वो ऐसा था कि वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शराब पीता है और सस्पेंडेड ऑफिसर है। पत्नी जो है उसकी डेथ हो चुकी है, वाइफ की। एक तरह से लूज़र है ज़िंदगी में। एक बेटी भी है 10-11 साल की। मेंटली जो इंसान बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि स्टेबल नहीं है। लेकिन एक केस आता है
कि जब उसे पता लगता है कि लड़कियों की जो लड़कियों को मारा जा रहा है दुल्हन की तरह सजा के, अब कौन मार रहा है, किस लिए मार रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो शहर में काफ़ी लड़कियों को मारा जा रहा है और कैसे उसे बुलाया जाता है एसीपी विक्रांत को, और उसे कहते हैं कि आप ये केस सॉल्व कीजिए, और इतना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। और फिर एंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे राइटर जो हैं बहुत कमाल के हैं, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारी जो प्रोड्यूसर है राज भाई, सब लोग, पूरी टीम, आई थिंक विनय मेरी टीम में, मतलब जो मेरे साथ जिन्होंने एक्टिंग की है, विनय आनंद उम्दा कलाकार है भाई। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरी टीम, पूरी कास्ट, राइटर, डायरेक्टर, सब लोग, मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत टाइम के बाद एक शो करने में मज़ा आया जी। मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा। अब ज़्यादा रिसर्च तो मैंने किया नहीं, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका किरदार था कि सुबह से लेकर रात तक शराब पी रहा है। अब इसमें रिसर्च में क्या करूँ लेकिन वो तो खैर आई थिंक नेचुरल रिसर्च हो ही जाती है सबकी, लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा उस कैरेक्टर को समझना, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा बहुत डार्क है, खून खराबा बहुत था, लाशें, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, थोड़ी बहुत समझना पड़ा कैरेक्टर के बारे में, और हो गया। और डायरेक्टर बहुत अच्छे थे हमारे, तो सब लोग ने मिलकर कर लिया फिर। But sir, as a good actor, as a good performer, what do you think? What is the key point to connect with the audience properly? की पॉइंट एंटरटेनमेंट, और कुछ नहीं है। आई थिंक जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब चाहे वो मेरी मीडिया की फैमिली हो या ऑडियंस हो, व्यूअर्स हो, मेरे फैंस हो, कोई भी हो, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब मैं वो चाहे एसीपी विक्रांत के रूप में दूँ, या मैं विरांशु सिंघानिया के रूप में दूँ, या मैं सागर प्रताप सिंह के दूँ, या महाराणा प्रताप सिंह के दूँ, अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं तो लोग पसंद करेंगे आपको। तो मैंने कोशिश किया है कि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत अलग है, बहुत सीरियस है, इसमें कुछ हंसी मजाक नहीं है इस कैरेक्टर में, बहुत बहुत डीप है, इंटेंस है, तो बहुत ग्रंजी है, और मतलब लातों से बात करता है, बातों से बात नहीं करता है, जिसको देखता है सीधा ठोक देता है। इसके अलावा आपका नाम जुड़ रहा है एक रियलिटी, पता नहीं यार, ये कौन नाम, बताओ ये कौन कर रहा है यार, उसको आज इंसान को पकड़ो यार पहले। नहीं ऐसा, मैं हमेशा नहीं, मैं हमेशा ऐसी हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं कभी रियलिटी शो करूँगा, चाहे वो खतरों हो, बिग बॉस हो, या द 50 हो, मैं सबसे पहले अपनी मीडिया फैमिली को बताऊँगा। मैंने हमेशा बोला है ये, और इनको पता है मैं बोला तो पक्का बोलूँगा। अब वो कैसे बोलूँगा, कब बोलूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो पक्का बताऊँगा, डेफिनेटली। anything for your lovely. बिल्कुल यार, फॉर माय लवली फैंस प्लीज़ वॉच एसीपी विक्रांत एंड वॉच कटिंग चाय, कटिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। बालाजी का नया ऐप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है, अमेजिंग एक्टर्स हैं, बहुत मज़ा आया मुझे शूट करके। एक नया अवतार है एसीपी विक्रांत, आई एम होपिंग कि लोगों को बहुत पसंद आए ये मेरा नया रूप। सो प्लीज़ गो डाउनलोड कटिंग एंड एन्जॉय एसीपी विक्रांत, लॉट्स ऑफ लव, और बहुत सारा धमाल, बहुत सारे सरप्राइजेज आ रहे हैं इस साल। इतना बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ जी।